کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے اپنے ہی گھر میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہو سکتی ہیں جو تمہاری قسمت کے دروازے بند کر رہی ہیں؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم جتنا بھی کماتی ہو پھر بھی رزق تمہارے ہاتھ سے یوں پھسل جا رہا ہے جیسے ریت مٹی سے مٹی؟ پیاری بہنوں، یہ صرف تمہاری بدقسمتی نہیں، یہ ان چیزوں کا اثر ہے جو تمہارے گھر میں چھپی بیٹھی ہیں، جو نہ صرف برکت کو روکتی ہیں بلکہ غریبی، بیماری، لڑائی جھگڑے اور بے سکونی کو دعوت دیتی ہیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہاری الماری، تمہارا کچن، تمہارے بیڈ کے نیچے یا گھر کے کسی بھی کونے میں پڑی ایک عام سی چیز کس طرح تمہاری خوشیوں کو نگل رہی ہے۔ جب گھر میں موجود چیزیں خود نصیحت اور نصیحت کے دروازے کھولنے والی بن جائیں تو پھر کتنی ہی دعائیں کیوں نہ مانگی جائیں، وہ دعائیں آسمان تک پہنچ نہیں پاتی۔ ربیع الاول کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اگر تم 15 ربیع الاول سے پہلے ان چیزوں کو نہ نکالا تو یہ رحمتیں تمہارے دروازے پر آ کر پلٹ جائیں گی، تمہارے نصیب سے سکھ، چین، سکون ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے وہ کبھی تمہارا حصہ تھے ہی نہیں۔ دل کانپ جائے گا جب تمہیں پتا چلے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، کیونکہ وہ شاید تمہارے گھر میں موجود بھی ہوں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ تو کان کھول کر سن لو، ابھی وقت ہے خود کو تباہی سے بچانے کا، ورنہ ایک بار جو نصیحت گھر میں قدم رکھ لے پھر نسلوں تک رزق کو جکڑ لیتی ہے۔ پیاری بہنوں، ہم وقت ضائع کیے بغیر بات کرتے ہیں پہلی چیز کے بارے میں جو اگر ربیع الاول کے مہینے میں بھی تمہارے گھر میں پڑی رہی تو یہ صرف ایک چیز نہیں بلکہ تمہاری تقدیر کی برکتوں کو چاٹ جانے والا ناسور بن سکتی ہے، اور وہ ہے پھٹی پرانی جوتیاں، چپلیں، یا سن کر شاید تمہیں تعجب ہوا ہو مگر ذرا دل تھام کر سنو، پرانی ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی جوتیاں جو تم نے ایک کونے میں ڈال دی ہیں، نہ انہیں پہنتی ہو نہ پھینکتی ہو، وہ در حقیقت غریبی، بدبختی اور نصیحت کا ایک ایسا دروازہ کھولتی ہے جو تمہارے گھر میں داخل ہو کر ہر نعمت کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اب خود سوچو، جس گھر میں ایسی چیزیں بڑی ہوں جو نہ صرف گندگی پھیلائیں بلکہ بدبو، بیماری اور نجس اثرات لے کر آئیں، کیا وہاں فرشتے آئیں گے؟ کیا وہاں رحمتیں اتریں گی؟ یہ پرانی جوتیاں تمہارے دروازے کے پیچھے، صحن کے کسی کونے میں یا اسٹور کے کسی اندھیرے میں پڑی وہ نصیحت ہوتی ہیں جو تمہیں دکھائی نہ دیتی مگر تمہاری رزق، تمہاری سکون، تمہاری اولاد کی خوشیاں اور تمہارے شوہر کی برکت کو خاموشی سے کھا جاتی ہیں۔ آج تم دیکھتی ہو کہ شوہر صبح جاتا ہے، شام تک کام میں لگا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن تنخواہ آتے ہی ختم ہو جاتی ہے، بچے بیمار رہتے ہیں، دل اداس رہتا ہے، زبان لڑاکا ہو گئی ہے، عبادت کا دل نہیں کرتا، ہر وقت تناؤ اور غصہ چھایا رہتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں وہ چیزیں موجود ہیں جو نصیحت کا در کھول چکی ہیں، اور انہی میں سب سے بڑی علامت یہ ہے پرانی جوتیاں ہیں۔ ایک اور نے اپنے گھر سے کچھ ٹوٹے ہوئے برتن، پرانی چادریں اور پھٹی جوتیاں نکال دی، صرف اتنا سا کام کیا، مگر وہ کہتی ہے کہ 3 دن کے اندر میرے شوہر کو کام پر ترقی ملی، بچے جو مہینوں سے بخار میں تپ رہا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، اور گھر میں عجیب سا ٹھنڈک اور سکون محسوس ہونے لگا۔ یاد رکھو، اللہ برکت وہاں اتارتا ہے جہاں صفائی ہو، پاکیزگی ہو، جہاں ماحول میں گندگی نہ ہو، جہاں نیتیں صاف ہو اور چیزیں ترتیب میں ہو۔ ربیع الاول کا مہینہ ایسا ہے جس میں میرے نبی کی ولادت ہوئی، اور جب وہ گھر میں جس میں نبی کا ذکر ہو اس گھر میں اگر گندگی، نصیحت یا ناپاک چیزیں پڑی ہو تو وہ گھر نبی کی خوشبو سے کیسے پائے گا؟ میرے بہنوں، جب تم اپنے گھر سے ان پرانی پھٹی جوتیوں کا نکال دو گی تو صرف سامان کم نہیں ہوگا، نصیحت کا دروازہ بند ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ تم ایک چھوٹا سا قدم اٹھاؤ اور دیکھو کیسے تمہارے نصیب کا بند دروازہ کھلتا ہے۔ لہٰذا آج ہی اٹھو، گھر کے ہر کونے کی تلاشی لو، اور جو چیزیں تمہارے کام کی نہ ہو، جو پھٹ چکی ہو، جس میں تمہیں نفرت آتی ہو، جو بیکار ہو، اسے نکال دو، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے، بے شک اللہ طیب ہے اور طیب کو پسند کرتا ہے۔ تو جب تمہارا گھر صاف اور طیب ہوگا
तो फिर अल्लाह की रहमतें भी उतरेंगी, बरकत भी आएगी, सुकून भी आएगा और गरीबी तुम्हारे दरवाजे पे करीब भी ना बैठ सकेगी। अब बताओ क्या तुम तैयार हो अपनी तकदीर बदलने के लिए? तो शुरू करो। ये रब्बुल अव्वल का बरकतों का महीना है, मत छोड़ो इस लम्हे को, क्योंकि हो सकता है ये लम्हा दोबारा तुम्हारी जिंदगी में ना आए। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में, और ये कोई आम चीज नहीं बल्कि एक ऐसी चीज है जो हर दूसरे घर में पाई जाती है, लेकिन लोग इसके खतरनाक असरात के बिल्कुल बेखबर होते हैं। ये चीज है घर के बंद घड़ी या बंद घड़ियाल का रखा होना। जी हाँ, वो दीवार पर लटकी हुई या दरवाजे में पड़ी हुई घड़ी जो महीनों से रुकी हुई है, जिसमें सुइयां वक्त की हरकत को छोड़ चुकी हैं। ये घड़ी सिर्फ एक वक्त को नहीं रोकती, ये घर की तरक्की, बरकत, सुकून और कामयाबी की रफ्तार को भी रोक देती है। मेरी प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि बंद घड़ी क्यों परेशानियां लाती है? क्योंकि घड़ी एक निशान हरकत का, वक्त के बहाव का, और अगर वही रुक जाए तो गोया कायनात की रवानी को रोकने का अलामत बन जाती है। बंद घड़ी एक तरह से घर में रुके हुए वक्त की फिजा कायम करती है, और यही रुकावट जिंदगी के हर शोबे में दुख, ताखिर और बेसुकूनी का दावत देती है। हजरत अली से महसूब की एक कौल है कि हर वो चीज जो हरकत में ना हो वो बर्बादी के करीब होती है। बंद घड़ी न सिर्फ अपनी हरकत रोक देती है, बल्कि घर के अंदर ऐसी रूहानी जुमूद और बेकरारी को जन्म देती है ना, जो नजर तो नहीं आती मगर असरात दिखाई देने लगते हैं। बच्चों का दिल पढ़ाई में ना लगना, मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातों पर झगड़े, और सबसे बढ़कर घर में कोई भी काम वक्त पर ना होना, ये सब रुके हुए वक्त के रूहानी असर होता है। एक बार एक बुजुर्ग आलिम से किसी ने पूछा, हमारे घर में बरकत क्यों नहीं? तो उन्होंने जवाब दिया, घर में जाकर वे चीजें देखो जो रुकी हुई हैं, क्योंकि वक्त का बहाव जब किसी चीज से टकरा कर रुक जाए तो रहमत का दरवाजा भी थम जाता है। मेरी प्यारी बहनों, आज ही अपने घर का जायजा लीजिए। अगर कोई घड़ी बंद है तो या तो उसे दुरुस्त करें या घर से निकाल दे, क्योंकि जब वक्त रवा होता है तभी जिंदगी भी रवानी से चलती है। अगर घड़ी को चलाने की ताकत ना हो तो कम अज कम से उसे नजर से हटा देना अक्लमंदी है, ताकि रुका हुआ असर आपकी जिंदगी से साया न डाले। याद रखो, जिस घर की घड़ी रुक जाए उस घर की किस्मत भी साकित हो जाती है। चलो प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी चीज की, जो बज़ाहिरी मामूली लगती है लेकिन इसकी मौजूदगी पूरे घर के सुकून को चाट जाती है, और वह ये चीज है फटे हुए पर्दे। जी हाँ, ऐसे पर्दे जिन पर चाक लगा हो, धागे निकल रहे हो, जिनके किनारे उखड़े हो या जिन पर पुरानी नमी की छाप हो। ये चीजें सिर्फ नजर की उलझन नहीं बल्कि रूहानी नफ्सियाती बेचैनी की अलामत है। तुम हैरान रह जाओगी जब तुम्हें ये मालूम होगा कि इस्लाम में सफाई और खूबसूरती को सिर्फ जिस्मानी सफाई तक महदूद नहीं रखा गया है, बल्कि माहौल की तरबीब, रंगों की हम आहंगी और चीजों की हालत भी दिल पर असर डालती है। पुराने मेले और फटे हुए पर्दे सिर्फ तुम्हारी दीवारों को मंजर खराब नहीं करते बल्कि तुम्हारे घर की तन्वाई को भी बंद कर देते हैं। तुमने कभी गौर किया है कि जिन घरों में हर वक्त झगड़े होते हैं, दिल घबराता है, दिल करता है बाहर निकल जाए, वहाँ अक्सर ये तो रोशनी नहीं आती या पर्दे मैले टूटे या पोशीदा होते हैं, क्योंकि पर्दे सिर्फ धूप रोकने का काम नहीं करते बल्कि ये घर की बरकत के दरवाजे भी होते हैं। अगर ये दरवाजे फटे हुए हो तो अंदर रहमत कैसे आएगी? उलेमा अबातिन ने यहाँ तक लिखा है कि जो घर अपनी दीवारों को ढांपने के लिए फटे हुए पर्दों का इस्तेमाल करता है, उसकी अपराध रफ्ता एहसास एक कतरी जहनी दबाव और रूहानी बेचैनी का शिकार होने लगते हैं। ऐसे घरों में रहने वाले अफराद अक्सर नींद की कमी, बेसुकूनी, चिड़चिड़ेपन और बार बार बीमार होने जैसी शिकायतें करते हैं। तुम्हें लगेगा कि ये सिर्फ पर्दे का मामला है, मगर दर हकीकत ये तुम्हारे जहन और दिल की बंदिश का एक बड़ा जरिया बन चुका होता है। लिहाजा अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में फरिश्ते उतरे, बरकत दाखिल हो, शौहर का दिल तुम्हारे पास टिके, बच्चों का मिजाज नरम हो और तुम्हारा दिल हर सुबह ताजा होकर दीदार हो, तो सबसे पहले इन फटे हुए पर्दों को बदल दो, क्योंकि ये सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी का बहुत सी मसाइल की जड़ है। चलो प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी ऐसी चीज की जो अगर तुम्हारे घर में हो तो तुम्हारी किस्मत का ताला हमेशा के लिए बंद हो सकता है, और वह टूटे हुए
शीशे या आईने का रखना। क्या तुमने कभी गौर किया है कि आईना सिर्फ चेहरा दिखाने का जरिया नहीं होता, बल्कि ये तुम्हारे घर की तन्वाई का अक्स भी होता है। मेरी प्यारी बहनों, अगर घर में कोई आईना या शीशा टूट जाए और उसे फेंकने के बजाय रखा जाए तो वह तुम्हारे घर की किस्मत को टुकड़ों में बांट देता है। संभल जाओ, क्योंकि पुराने जमाने के बुजुर्ग कहा करते थे कि जिस घर में टूटा हुआ शीशा हो वहाँ सुकून नहीं रहता, वहाँ के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। यह महज रिवायत नहीं बल्कि हकीकत है। महरिम की रूहानियत का मानना है कि शीशा रोशनी की तन्वाई की मुनासिब करता है और जब वह टूटा हुआ होता है तो वह माफी तन्वाई की जबत करता है। न सिर्फ जबत करता है बल्कि उसे घर में बिखेर देता है। शायद इसलिए बाद घरों में लड़ाई, चुगली, बुजुर्ग, हसद और बेकदरी की फिजा छाई रहती है। हालांकि बज़ाहिर हर चीज दुरुस्त नजर आती है, मगर अंदर ही अंदर कुछ न कुछ टूट रहा होता है। और याद रखो, अगर शीशा टूट जाए और तुम उसे फौरन ना फेंको तो वो तुम्हारे मुकद्दर के साथ साथ तुम्हारे शोहर के, तुम्हारी औलाद और तुम्हारे रिज़्क पर भी बुरा असर डाल सकता है, क्योंकि जो चीज खुद टूट चुकी है वो किसी को मुकम्मल नहीं कर सकती। मेरी प्यारी बहनों, अपने घरों की छानबीन करो। अगर कहीं कोई टूटा हुआ आईना या शीशा पड़ा हो तो चाहे वह अलमारी के अंदर हो या किसी दीवार के पीछे छुपा दिया गया हो, उसे फौरन निकाल कर घर से बाहर फेंक दो, क्योंकि बात दफा हमारी तकदीर का जवाल उन्हीं छुपी हुई चीजों की वजह से होता है जो हमें नजर नहीं आती मगर हमारे घर पर छाई होती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं आखिरी और पांचवी ऐसी चीज की जिसे 15 रबीउल अव्वल से पहले ही लाजमी अपने घर से निकाल देना चाहिए, वरना ये चीज न सिर्फ आपके रिज़्क के दरवाजे बंद कर सकती है बल्कि घर के अफराद को ऐसी परेशानियां घेर लेती हैं जिनकी कोई जाहिरी वजह भी समझ नहीं आती। ये चीज है टूटा कांच के 100 पीस बर्तन या आईने। जी हाँ, घर में अगर किसी जगह टूटा हुआ आईना रखा हो या 100 पीस में बिल्कुल मामूली सा तफाक या कोई गुलदान फटा हुआ पड़ा हो तो ये चीजें सिर्फ जाहिरी खराबी नहीं बल्कि अंदरूनी बर्बादी की अलामत होती है। मेरे प्यारे आका ने फरमाया है कि घर में वो चीज ना रखो जो खुद अपनी हालत पर नौहा कर रही हो। टूटे हुए आईने से सिर्फ चेहरा नहीं बिगड़ता, बाद वक्त नसीब भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ये चीजें घर के हुस्न और जमाल को तो कम करती हैं मगर रूहानी बरकत को भी छीन लेती हैं। रूहानी उलमा ने लिखा है कि जो घरों में टूटे शीशे रखते हैं उनके घरों में शैतानी असरात ज्यादा देर नहीं लगाते। और यह भी देखा गया है कि ऐसे घरों में बार बार चीजें गिरती हैं, बच्चे जख्मी होते हैं या मियाँ बीवी में बिला वजह तकलीफियां पैदा होती है। एक आईना जो सिर्फ अक्स दिखाता है, अगर वह टूट जाए तो अक्स बिखर जाता है। बिल्कुल वैसे ही रिश्ते भी बिखरने लगते हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके घर में भी कहीं पर कोई शीशा, गुलदान, कप या 100 पीस जरा सा भी टूटा हुआ हो तो इसका मतलब है कि बरकत रुक चुकी है और रिज़्क की राह में रुकावट आ चुकी है। उसे फौरन बाहर निकालें और नए सिरे से अपने घर को तनाइज करें, क्योंकि जिन घरों से पुरानी नुसरत निकल जाती है वह नई रहमत खुद चलकर आती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं आखिरी और पांचवी ऐसी चीज की जिसे 15 रबीउल अव्वल से पहले लाजमी घर से निकाल देना चाहिए, और वह चीज है ऐसी तस्वीरें या मुजस्समे जो रूहादार मखलूकों की नुमाइंदगी करते हैं, जैसे कि इंसानी या जानवर चेहरे वाली पेंटिंग्स, मुजस्समे, शीशे पर बने हुए नक्श, दीवारों पर लगे हुए तस्वीरों के फ्रेम या स्टिकर, और वे खिलौने जो इंसानी शक्ल में हो। आप सोच रही होंगी ये सिर्फ सजावट की चीजें हैं या बच्चे के खिलौने हैं, लेकिन हकीकत में ये चीज कोई घरों में रहमत के फरिश्तों की आमद को रोक देती है। मेरी नबी ने फरमाया था कि जिस घर में तस्वीर या कुत्ता हो वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। आज घरों को आयाब घरों में बदल दिया गया है। दीवारों पर आंखें वाली तस्वीरें, अलमारियों में मुजस्समे, पर्दों पर चेहरे, यहाँ तक कि कुबलों पर और बेडशीटों पर जानवरों की छवि छुपी हुई होती है। अगर फिर भी शिकायत करते हैं कि सुकून नहीं, बरकत नहीं, इबादत में दिल नहीं लगता, बच्चे नाफरमान हो गए, शौहर गुस्से में रहता है, बीवी रूठ कर बैठी
रिज्क रुकता जा रहा है तो जरा सोचो कि जिस घर में अल्लाह के फरिश्ते ना आए वहाँ सुकून और बरकत कहाँ से आएगी। क्या आपको मालूम है कि बाद उलमा इकराम ने लिखा है कि ऐसी तस्वीरें सिर्फ फरिश्तों को आमद को नहीं रोकती बल्कि शैतानी असरात को दावत देती हैं। फिर भी यही तस्वीरें रात को बच्चों के ख्वाबों में खौफनाक शक्लें बनकर आती हैं, मियाँ बीवी के दरमियान उलझने पैदा करती हैं, घरेलू झगड़ों को बढ़ा देती हैं और बीमारियों को जगह देती हैं। आज हमारे घरों में मिट्टी, प्लास्टिक या शीशे के बने हुए बेजान मुस्तमे जीनत समझे जाते हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि कयामत के दिन इन मुजस्समों को बनाने वाले को हुक्म दिया जाएगा कि इनमें रूह फूंक कर दिखाओ, और जिस घर में ये मौजूद हो वो घर अल्लाह की नाराजगी का मकसद बन जाता है। औरतों से भी गुजारिश है कि वे अपने घरों को सिर्फ जाहिरी खूबसूरत से ना सजाएं बल्कि अल्लाह की रजा से सवारे। मर्द हजरात को भी चाहिए कि वे ऐसी चीजों को खरीदने से पहले 100 बार सोचे कि ये चीज सिर्फ आंखों को उभारती है या अल्लाह की नाराजगी का सबब बनेंगी, क्योंकि सच तो ये है कि एक हलाल कमाया हुआ रुपया अगर ऐसी चीज पर खर्च हो जाए जो अल्लाह को नापसंद हो, वह रिज़्क़ भी बवाल बन जाता है। मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे घरों को रहमतों, फरिश्तों और बरकतों से भर दे, हमारे दिलों को हक बात पर कबूल करने की तौफीक दे, हमें ऐसी हर चीज से बचाए जो उसकी नाराजगी का सबब बने, और हमें वह आँख अता फरमाए जो चीजों को सिर्फ जाहिरी नहीं बल्कि रूहानी असरात के साथ देख सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगी हो, दिल को छू गई हो तो इससे जरूर आगे बढ़ाएं, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मजीद ऐसी ही इस्लाही, हैरानी खून और जिंदगी बदल देने वाली वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।